Thank you very much. Today my lecture is based on geometry and construction of quadrilaterals. Once I say quadrilateral means four side, and it has a different nomenclature. First warm up. I will give example this convex quadrilateral figure. Figure A. ये figure A है जो है. I think in the class 7th, convex mirror one must be knowing. Convex mirror means the आपका जो फ्रंट पर जो चीज निकला हो, convex. Just see this figure. This is a convex type quadrilateral. अब देखिए, these sides are equal, these sides are equal, but this is ejected outside of this BD line. Concave means this is inside this line BD, unlike this. So you have to be very careful to have in mind what is the convex quadrilateral, what is the concave quadrilateral. These two figures I have given, and also the region I have given. Just say A, B, C and D is less than 180 degree. All four angles should be less than 180 degree, then it is a convex. Here, just see, only C angle is more than 180, rest is less than 180. This is the definition of concave quadrilateral. These two examples I have given, you just make sure in your mind that what is the difference between convex and concave. अगर नहीं समझ में आया तो जिसका मुंह बाहर निकला हो वो कॉन्वेक्स है, और जिसका मुंह अंदर निकला हो वो कॉनकेव है. So this is how I have, there are certain points which I have defined. Vertex. अब देखिए, vertex यहाँ क्या है? A, B, C, D are known as vertex. A, B, C, D vertex known है. अब देखिए, opposite vertices. B or D or C are the opposite vertices. Sides, there are four sides, so all sides are four sides of convex quadrilateral. Opposite side, the side AB and AD are opposite to each other. AB and CD are opposite side. All adjacent angle में side का angle जो होता है. The AB and BC, A, B and BC as CD and D are adjacent sides. मतलब आसपास के sides जो होते हैं उसको बोलते हैं जो है. Angle A, B, C, D are four angle of quadrilateral, and sum of the all four angle is 360. Now, opposite angle A and angle C are opposite angle, or B or D are also opposite angle. A and C, B and D are opposite angle. Adjacent means sides का angle जो है. A and B and C and D are A और B sides के साथ में C और D adjacent angle है जो है. Diagonal obviously clearly BD और AC are diagonal angle. Concave quadrilateral. The A and C are reflex vertices and B and D are the non-reflex vertices. देखिए, A and C, यहाँ देखिए, A and C are the reflex vertices और B और D are not reflex vertices. और एंगल यहाँ पर देखिए, एंगल C is greater than 180, other is less than 180. अब देखिए, classification of quadrilateral has been discussed from next page. After that, many exercises has been solved by using these various properties. अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब देखिए, स्क्वायर, दिस इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल, एंड ऑल प्रॉपर्टीज आर built in this as mentioned in the earlier. All sides are equal, all sides are parallel, all angle are 90, both angle are diagonal are equal, 360. Rectangle, same thing I have given here. Parallelogram, same thing I have given here. These are the properties. Diagonal bisect in all cases A, B, C. अब इसमें मैं bisect करता मतलब OA and OC are equal, OD, OB are equal. Similarly in these cases. अब देखिए,
रोम्बस, अब यहाँ पर देखिए एच को साइलेंट बोलते हैं, रोम्बस। अब बच्चे घबरा जाते हैं, होम ना, रोम्बस, एच इज साइलेंट। अब इसमें क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम बट ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल। अब देखो पैरेललोग्राम ये भी है, ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, इसमें ऑल साइड्स आर और एंगल्स आर इक्वल, ये ध्यान रखिएगा। ट्रेपेजियम, इट हैज वन पेयर ए बी सी डी आर पैरेलल, केवल इसमें एक ही पैरेलल होते हैं, बाकी नॉन पैरेलल होते हैं जो है। इफ अदर साइड्स आर इक्वल देन इट बिकम्स ए आइसोलेस ट्रेपेजियम। नोट 2, देयर आर टू ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग वन डायगोनल। अब देखिए इन सभी में अगर एक डायगोनल को ज्वाइन तो टू ट्रायंगल बनेगा, और दोनों को ज्वाइन करके तो फोर ट्रायंगल बनेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा जो है, ये इसमें केसेस में है। अब देखिए प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की जो है प्रॉपर्टीज, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी 1 ये है, ठीक है, यहाँ पर प्रूफ किया गया है। प्रॉपर्टी 2 है, यहाँ पर प्रूफ किया गया है। क्या प्रॉपर्टी 1 है, देखिए अपोजिट एंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम में एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, एंगल सी और एंगल ए इक्वल है। कैसे है ये मैं बता रहा हूं। जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर वन अपोजिट वर्टिसेस को मिलाएंगे तो दो ट्रायंगल बनेगा, द टू एंगल फॉर्म, इट इज गिवन ऑलरेडी हियर। अब देखिए स्टेप वाइज आई हैव रिटन। स्टेप 1, join the opposite vertices AC and which is as a diagonal, AC is a diagonal. Step 2, consider angle C is equal to A plus 3, 1 plus 3 हो गया, और एंगल A is equal to 2 plus 4 हो गया। इसको कंसीडर किया गया है जो है। अब स्टेप 3 देखिए, या ध्यान से क्या है, इन ए बी सी, इस एंगल ए बी सी में जो है और ए डी सी, इन दोनों एंगल में जब देखिए वी हैव द फॉलोइंग थिंग्स। व्हाट? AC is common, angle A is equal to angle 2, angle A 1 is angle 2. Why? This is parallel, this is bisector. 3 equal to 4 because it is parallel bisector. So if one sides are equal or common and two angles are same, तो क्या होगा, congruence हो जाएगा ट्रायंगल। और congruence का मतलब क्या होता है, hence AB is equal to CD, AB is equal to CD और BC is equal to DC, and third angle B is equal to, therefore angle 1 plus n plus 3 is equal to 2 plus 4, 1 plus 3 is equal to 2 plus 4। प्रूफ हो गया आपका जो है। कंक्लूजन, द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अब क्या होगा, 2A plus 2B is equal to 360, तो A plus B is equal to 180 डिग्री। दिस इज द प्रूफ, सिंपल थिंग्स विच all or something are known to the students, only proof is here given। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी 2, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए, अब आपको जो दो डायगोनल लिखा गया है और ये दोनों का जो दिया गया कि बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब OB इज इक्वल टू OD और OC इज इक्वल टू OA, ये आपको प्रूफ करना है। बराबर होगा तभी बाइसेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा जो। अब देखिए स्टेप 1, ज्वाइन AC एंड BD, हमने बता दिया है जो है। अब देखिए स्टेप 2, अब यहां देखिएगा इन ट्रायंगल OAB एंड OCD वी हैव क्या है। अब देखिए एंगल COD या COD इज इक्वल टू AOD। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट साइड एंगल, ये दोनों आपको कट कर रहे हैं, तो ये एंगल बराबर होगा और फिर COB और AOD भी बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज यहाँ पर लिखा गया, COD इज इक्वल टू AOD और फिर DCO, देखिए DCO और BAO क्या है, ये अल्टरनेट एंगल ड्यू टू पैरेलल, CD इज इक्वल टू AB। अब देखिए सी, देखिए AC इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। AB इज इक्वल टू CD, इक्वल भी है पैरेलल भी है, देयरफॉर एंगल एक कॉन्ग्रुएंस हो गया जो है। देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC, तो ये बराबर है, तो उसी तरह से उसको प्रूफ किया जा सकता है। हेंस अब देखिए इसमें क्या किया गया है, AAS स्टैंड्स एंगल साइड्स। अगर दो एंगल और एक साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ASA एंगल साइड्स एंगल, अगर इसमें भी इस तरह से है तो कॉन्ग्रुएंस। दिस टू प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड इन दिस केस, वेरी सिंपल वे। और ये ध्यान रख लीजिए, देयर आर मेनी क्वेश्चंस आर प्रॉपर्टी which has been mentioned earlier but not been proved,
बट इफ यू रिपीट दिस वन इट विल गिव ए प्रैक्टिस फॉर यू. समटाइम्स पीपल थिंक ओ ये तो मैं आता है. नो, इट इज नॉट. प्रैक्टिस इन द मैथ इज मस्ट. अब देखिए, अब यहां पर आपको जो है एग्जाम्पल कह लीजिए, प्रूफ कह लीजिए. ये दिया हुआ है, क्या कह रहा है? प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. और क्वाड्रिलेटरल 360 आपको प्रूफ करना है. तो क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, ए बी सी डी, किसी तरह का क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, ठीक है. और ज्वाइन द वर्टिसेस ए और सी दिया हुआ. फॉलो. अब देखिए, इन ट्रायंगल ए सी डी, ध्यान से देखिए, ए सी डी क्या है? तीनों का सम क्या है? 180 है. उसी तरह से ए बी सी ए सी डी इन बोथ ट्रायंगल. क्यों? क्योंकि इन ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल आर 180. तो ये दोनों का 180 कर दिया गया है. अब देख क्या कह रहा है, अब दोनों को सम कर दीजिए. 1 + 3 + 5 = 180, 2 + 4 + 6 = 180. एंगल है मेरे. अब देखिए 1 2 को एक साथ करते हैं, 3 4 1 2, फिर देखो 1 2 और 2 4 और 5 6. अब यहां देखिए कुछ गलत लिखा हुआ है जो है. 1 2 है तो 3 4 होना चाहिए जो है. देखिए हमसे भी गलती होती है, जो मैं बहुत पहले में कहा हूं उसको बड़ा सावधान से मतलब रखना पड़ेगा. ये आपका 3 है. ओह, ये आपका ये 3 है. अब देखिए 1 + 2 क्या है? 1 + 2 एंगल ए है. 3 + 4 क्या है? एंगल सी है. और 5 से अब सबका है 360 हो गया. ये प्रूफ हो गया, सिंपल. अब इसमें क्या आपने यूज किया है? अपोजिट वर्सेस को ज्वाइन किया है, टू ट्रायंगल फॉर्म किया है. एंड इन बोथ टू ट्रायंगल आई हैव यूज्ड द फार्मूला दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स 3 एंगल इज 180. और दोनों को जोड़ दिया है, प्रूफ हो गया. एग्जाम्पल 2, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी देखिएगा, ए = 40, बी = 60, सी = 60. फाइंड एंगल डी. अरे बहुत सिंपल है. आप जानते हैं कि फोर्थ सम ऑफ 4 एंगल इज 360. 4 आर अननोन and out of 4 3 is known. So fourth can be very easily calculated, which I have done here. सब चलेगा, एंगल आ गया. अब देखिए 3 angles of quadrilateral. अब देखिए कह रहा 3 angles of quadrilateral are equal and fourth angle is right angle. Find the unknown angle. अब देखिए, अब इसमें देखिए बहुत आपको नॉट मच जो दिया हुआ है स्टेप ऑन. एंगल ए बी सी इसी की बात कर लीजिए, ये आपका इक्वल है. एंड फोर्थ डी इज 90. ध्यान रखिएगा, तब ए बी सी है, इसको एक्स मान लीजिए या ए के बराबर मान लीजिए, तो ये 3a हो जाएगा. और 90 360 ए = तो ये अब क्या होगा? ये आपका जो है ये क्वाड्रिलेटरल वेयर ऑल एंगल आर 90 डिग्री, स्क्वायर और रेक्टेंगल. Angle of a quadrilateral are in ratio of 2:3:4. Find the angle. अब देखिए, अब यहां पर देखिए प्रोपोर्शन में मैं बताया था कि इसमें 2:3 और 4:6 दिया हुआ है. तो इसमें इन रेशियो को जोड़ना पड़ेगा. तो टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ 360 = 15. और आउट ऑफ 15 2/15 × 60 is 1 angle. 3/15 × 360 is another angle. 4/15. इस तरह से हमने चारों निकाल दिया एंगल. बात समझना. और चारों एंगल निकल गया, सबको जोड़ दीजिएगा, वो 360 के बराबर आ जाएगा. वो प्रूफ हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा whether my question answer is correct or not. बहुत सिंपल चीजें हैं ये. जो बच्चे अच्छे हैं वो बड़े अच्छा तरह देखिए. बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. अपोजिट एंगल जब देखिए, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मैंने बी और ए बी सी डी, तो बी और ए और सी बराबर है, बी और डी बराबर है. ए और सी एक्स इक्वल टू होगा, बी और डी वाई हो गया. अब देखिए, अब एक्स + y = 180. ठीक है, या ये कह सकते हैं 2x + 2y = 360. अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल गिवन दिया हुआ है. हेंस x + x = 180, y = 2x. अब ये देखिए x = 90 डिग्री. तो वो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया. जो कोई इसमें बहुत तो वो नहीं है. ये लिखा है बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, मैंने x और y इक्वल है, तो x रखिए चाहे y रखिए, तो 2x 2y बातें की है. जो
ये थोड़ा अलग है, बिकॉज हियर अप टू एग्जाम्पल 5 वी हैव ओनली यूज द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल इज 360, और उस बेसिस पर सब क्वेश्चन हैं जो है। अब यहां थोड़ा मतलब ये डिफरेंट है, क्या है, इन ए एडजॉइनिंग फिगर DO, देखिए DO एंड CO आर बाइसेक्टर ऑफ ABC का ये बाइसेक्टर है, और BCD का ये बाइसेक्टर, ये भी बाइसेक्टर, D का बाइसेक्टर ये है और C का बाइसेक्टर ये है, O पर मिल रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ ADC ये पूरा ADC इक्वल टू 60 और DAB इक्वल टू 100 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DOC और ADC और ABC ये दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसमें बहुत ध्यान से नहीं सोचेंगे, बच्चा अगर नहीं सोचेगा तो गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि व्हाट एवर इट इज बीन गिवन, ये आपको जो है लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, देखिए स्टेप 1 ADC इक्वल टू 60 दिया हुआ है ADC, और BCD ये भी 60 है, मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब देखिए सिमिलरली OCB और OCB और OCD ये दोनों बराबर हो गया। अब इसमें देखिए ODA और ODC ये भी बराबर हो गया। ट्रायंगल DOC, अब ट्रायंगल DOC में क्या है कि तीनों एंगल 180 के हैं, अभी लिख दिया, ये तो वेल नोन है, रीजन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं जो। अब देखिए ODC इज 30, ODC 30 तो 60 है तो बाइसेक्टर तो 30 हो गया जो है, ये 30 दिया हुआ है, और OCD 30 ये भी 60 है तो ये भी 30 हो गया जो है, 30 रखिए तो इस एंगल को निकल जाएगा। जब दो एंगल ये पता है, ODC पता है और DCO पता है, 30 तो ये निकल जाएगा। अब देखिए ODC इक्वल टू 30 वो मैंने बता दिया जाए। अब देखिए फर्दर एंगल A इक्वल टू 100 दिया हुआ है, देखिए कहीं यहाँ पर दिया होगा जो है, एंगल A इक्वल टू 100 दिया हुआ है, ये 60 है, ये 60 है तो एंगल B नहीं निकलेगा, बड़े आराम से निकल जाएगा, तो वो एंगल हमने यहाँ पर B निकाल दिया। और चारों एंगल को शो, देखिए इन ऑल केसेस, अब देखिए यहाँ पे इसको एंगल D नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो CDO और ODC 30 हो जाएगा, DCO और OCB 30 हो जाएगा। एंगल देखिए OCB लिखे चाहे BCO लिखे, बात एक ही है, एंगल वही है। तो ये अब यहाँ पे एंगल यही से कि वन एंगल है, तो ये एंगल पता है, ये 60 पता है, ये 60 अपने आप निकल जाएगा जो। अब देखिए एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अब एडजेसेंट एंगल पता नहीं होगा तो सवाल नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए वार्म में मैंने कहा था रेशियो ऑफ 2:3। अभी 2:3 है तो अब देखिए एडजेसेंट एंगल मानना पड़ेगा A + B + C + 360, आल्सो A = C, B = D, हेंस ये A + B = 180। देख रहे हैं, निकल गया। अब स्टेप 2 देखिए, एंगल A और B एडजेसेंट एंगल है, पास के हैं, तो एंगल A/B = 2/3, तो एंगल A = 2/3B। अब इसी A को जो है आप इसमें रख देंगे तो B की वैल्यू निकल जाएगी जो। सिंपल सोल्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है, कोई बहुत बिग डील नहीं है इसमें जो है। तो जब निकल जाएगा तो आपका, और ध्यान रख लीजिए in such cases if you are finding all the angle of parallelogram, sum of all the angle must be 360। अब देखिए थोड़ा ये एग्जाम्पलेट है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए लिए कि लड़के को प्रैक्टिस होगा, स्टूडेंट विल डू द प्रैक्टिस, और जो वीक स्टूडेंट है उनको मैं यहाँ पर लिखा हूँ, उनको समझने में आसानी होगी, टीचर्स को भी आसानी होगी, तो इसलिए हमने बार बार मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ABCD देखिए पैरेललोग्राम है, और मेजर ऑफ एंगल A इज 3 टाइम्स द मेजर ऑफ एंगल B। अब देखिए एंगल A = 3 × एंगल B दिया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा।
अब एंगल ए जो 3 × b दिया हुआ है, ये गिवन है, तो गिवन वाले चीज पहले लिखिए। और आप a = c, b = d दिया हुआ है, तो पोजीशन इक्वल, तो अब देखिए ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b = 360, a प्लस b = 180। अब इस इमेज जो है, अगर आपका ये दिया हुआ है कि a 3 टाइम्स b, तो a को 3 टाइम्स b रख दीजिए, 3b रख दिया तो 4b हो जाएगा। अब 4 को उधर जाएंगे तो 45 हो जाएगा। अब हम लोग तो एकदम याद है, लेकिन यहाँ पर स्टेप दिया हुआ इसलिए कि आप शूट करिए, फिर ये करिए, जिससे कि स्टेप्स मतलब डोंट मिस द स्टेप। अगर एग्जामिनेशन में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया अलजेब्रा में, तो क्वेश्चन गलत होगा, पक्का गलत होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लाइन, इन ए रेक्टेंगल, अब देखिए रेक्टेंगल ये बना दिया हमने, ABC DP BQ आर परपेंडिकुलर टू AC एंड D एंड B रिस्पेक्टिवली फ्रॉम D एंड B। अब ये क्या है, बाइसेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इस पर ये है D से, और B से ये है परपेंडिकुलर है, Q है ये। ठीक है, और ये P है, ABCD MNO PQ, ये ध्यान रखना चाहिए, साथ साथ अल्फाबेट सुना चाहिए तो बेटर होता है ये। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि इज AB = CD। अब देखा रहा है AB क्या CD के बराबर है, यस, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर रेक्टेंगुलर इक्वल। अब देखिए B क्या कह रहा है, इज BQA और DPC, BQA और DPC आर एंगल इक्वल। अब देखिए ये इक्वल है कि नहीं है, देखिए यहां पर B का जो है BQA और DPC, BQA और DPC इक्वल, क्योंकि नॉर्मल है, तो ये भी 90, ये भी 90 होगा, ये भी 90 तो बराबर हो ही गया, मतलब जो क्योंकि परपेंडिकुलर है। एंगल BAQ और DPC दोनों राइट एंगल है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब जो है उसी तरह से आप देख लीजिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है जो। 10 इन ABCD पैरेललोग्राम, इफ A = 75 देन कैलकुलेट BCD। अब कह रहा है ABCD पैरेललोग्राम है, एंगल A दिया हुआ है, तो क्या है A प्लस B = 180, अपोजिट एंगल आर 180, तो इसको निकल गया, B निकल गया। उसी तरह से आप B और D बराबर इतना है, सिंपल, कहीं लेना नहीं। जो तेज लड़के हैं इजिली अंडरस्टूड कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हूँ B = D, A = C और एंगल A प्लस B = 180। ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये 180 है, ये 180 है। यूज किया है, हिंट हमने दे दिया है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अब देखिए 2 एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर, जब देखिएगा 3y + 10 और 3y - 4 फाइंड ऑल एंगल। ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब और 2 एंगल में एक एंगल 3y + 10 दिया हुआ है, एंगल 3y - 4 दिया हुआ है, और एडजेसेंट एंगल A और B है, तो A प्लस B = 180। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 जो इसमें यूज किया गया है। अब देखिए एंगल A = दिस, एंगल B = दिस, तो A प्लस B = 180। अब इसको जोड़ करके आप देखिएगा 6y + 6 = 180, तो आपका जो है ये y की वैल्यू 29 आ गया, y की वैल्यू 29 आ गया, तो आपका ये वैल्यू दोनों निकल जाएगा। देखिए A आपका जो है इतना निकल गया = C, B = इतना निकल गया = D, तो चारों एंगल निकल गया, चारों के सम देखिए 360 के बराबर हो जाएगा। 12 इन ए गिवन फिगर ये पैरेललोग्राम ABCD इन विच, अभी एंगल दिया हुआ है, 3 एंगल दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे ABCD दिया हुआ है, ये एंगल दिए हुए हैं, ध्यान रखिए 40 भी दिया हुआ है, 35 भी दिया हुआ है, 65 भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो अभी कह रहा है ABO ध्यान से देखिएगा, प्लस एंगल AOB, एंगल AOB, ABO
एंगल ओ बी, और तीनों का सम 180 है, ठीक है। अब सॉरी देखिए हम यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं, देखिए ए बी इस एंगल में तीनों एंगल का सम 180 दिया हुआ है, और वो क्या दिया है कि ए ओ बी इजकल टू डी ओ सी, ए ओ बी इजकल टू डी ओ सी, मैंने ये एंगल बराबर है तो ये 65 का हो गया, ये 35 का हो गया, तो ये एंगल निकल जाएगा, आंसर ए। अब देखिए ए बी ओ स्टेप 2, ए बी ओ और ओ डी सी, ए बी ओ ओ डी सी, ये एंगल बराबर है, क्यों बराबर है? पैरेलल लाइन का जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे पैरेलल लाइन, इसलिए वो बराबर हो गया जो है। उसी तरह सभी का देखिएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमने वो नहीं किया है, और सबका रीजन भी हमने दे दिया है और एग्जाम्पल के साथ दिया है, तब ये बराबर हो जाएगा, सभी एंगल निकल जाएंगे। अब देखिए ये है, देखिए अब देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है। अब पेरीमीटर मतलब ऑल सम ऑफ द ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 220 मीटर, वन साइड एक्सीड द अदर साइड बाय 50 मीटर। एक्सीड मतलब ज्यादा, एक साइड जो है दूसरे साइड से 50 मीटर एक्स्ट्रा है, तो लेट अस अज्यूम द अदर साइड इज x, देन वन साइड इज x प्लस 50 मीटर। अब देखिए अब क्या, 2 इंटू वन साइड प्लस अदर साइड इक्वल टू 2 इंटू इक्वल टू इतना हो गया आपका, पेरीमीटर ही हो गया। और ये पेरीमीटर जो है आपका किसके बराबर है? 220 के बराबर है, तो इसमें x को सॉल्व करके निकाल लिया गया है, तो वन साइड उतना है तो अदर साइड जोड़ दिया गया है। अब पेरीमीटर का मतलब ही नहीं पता होगा तो क्या स्टूडेंट सॉल्व करेगा? अब कहेंगे पेरीमीटर क्यों बता रहे हैं? टीचर को बताना चाहिए, शुड टेल द स्टूडेंट। अब यहां देखिए एडजेसेंट साइड आर इन रेशियो, अब देखो एडजेसेंट साइड पता होना चाहिए, इस पेरीमीटर इज इतना मीटर, वही चीज है, कोई चीज नहीं है मतलब जो है। अब साइड 1 और साइड 2 इन द रेशियो ऑफ इतना, तो साइड 1 साइड 2 2/5 हो गया, तो साइड 1 क्या 2/5 साइड 2 हो गया, गिवन, ये दिया हुआ है। अब देखिए 2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2 पेरीमीटर 56 मीटर दोनों दिया हुआ है, और 2 इंटू साइड 56, और साइड 1 की वैल्यू यहां से रख दीजिए, साइड 2 निकल जाएगा, साइड 2 निकल जाएगा तो साइड 1 निकल जाएगा। बड़ी सिंपल वे में हमने बता रहा हूं, और ये ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, जिसको हमारी बात नहीं समझ में आ रही है, दे शुड गो थ्रू मेनी टाइम्स एंड दे विल मस्ट आंसर विल बी क्लियर। अब देखिए इन आइसोलेस ट्रेपेजियम वन ऑफ नॉन पैरेलल साइड मेजर 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ अदर नॉन पैरेलल साइड? अब देखिए अब ट्रेपेजियम का मतलब ही नहीं पता चलेगा तो आप ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो 2 साइड्स पैरेलल होते हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल होते हैं, ये क्लियर है। सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, और नॉन पैरेलल ये इक्वल, तो ए बी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आंसर बहुत क्लियर हो गया मतलब जो। अब ये भी देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई कुछ नहीं है, ये आपका जो है रोम्बस है, ऑल साइड्स बराबर होना चाहिए, ऑल एंगल इक्वल होना चाहिए, और डायगोनल करेंगे तो 90 डिग्री पर कट करेगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, वही हमने लिखा है, वैल्यू रख दीजिए, आप बड़े आराम से पा जाएंगे। और अंडर रूट निकालने के लिए अब एक तरीका मैं ऑलरेडी एक बार दे दिया हूँ, अब हम समझते हैं कि इस चीज़ को समझ चुके हैं, क्योंकि ये समय जो है अंडर रूट स्क्वायर बताने की नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। देखिए अब पैरेललोग्राम में अब ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। हम जस्ट कल रिमाइंड के लिए हमने ये दिया है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर होता है, एंगल बी एंगल डी के बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, ट्रायंगल का ऑल द सम ऑफ ऑल ट्रायंगल इज 180, यही सब चीज इसमें हमने दिया है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये बहुत जरूरी है। जो कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड 4 एंगल 2 डायगोनल
इसका मतलब कितना होगा 4 + 4 10 एलिमेंट्स एज ए मेंशन अर्लियर। 10 एलिमेंट्स होते हैं, 10 पैरामीटर्स कर लीजिए, एलिमेंट्स कर दिए, बातें की है जो वन नीड्स। अब देखिए और यहां ध्यान रखिए 5 पैरामीटर्स ऑब्लिक एलिमेंट्स आउट ऑफ 10 टू कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ, मैंने आपका जो है 5 पैरामीटर पता होना चाहिए आपको इस तरह का क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग स्केल होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए। कंपास प्रोटेक्टर में बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं, वो क्लियर हो जाना चाहिए। मेजरिंग स्केल आप लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए, कंपास आर्क ड्रा करने के लिए, प्रोटेक्टर सुटेबल एंगल के लिए। तो एंगल कैन बी मेड बाय कंपास एज वेल एज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर में बनाना बहुत आसान है, लेकिन आपका जो है कंपास यूज करके बनाने में जब तक मेथड नहीं जानते वो नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड। क्या प्रैक्टिस है? 90 डिग्री का बाय यूजिंग द कंपास, 45 हाफ ऑफ दैट, 60, 120, 30, 135 एक्स्ट्रा बाय कंपास। ये आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, तब आगे का सवाल कर पाएंगे। गुड क्वालिटी आप कंपास यूज करना चाहिए। बहुत लोग कंपास यूज करते हैं, घुमाते समय आगे बढ़ जाता है। नो, बेस्ट क्वालिटी का तब आंसर करेक्ट होगा। ये हम लोग समय में यूज कर चुके हैं, इसलिए मैं सावधानी बरत रहा हूँ। सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। महंगा खरीद लोगे वो 4-5 साल चलेगा, सस्ता करोगे हर 6 महीने में खरीदना पड़ेगा। द फिटिंग ऑफ पेंसिल शुड बी डन प्रॉपरली टू ड्रॉ एक्यूरेट एंगल। फिटिंग मतलब वो ज्यादा गाढ़ा टाइट होना चाहिए जो हिले ना। नॉलेज ऑफ ड्राइंग बाइसेक्टर लाइन। अब बाइसेक्टर का लाइन जो 7th में ही पढ़े होंगे आप, ये जानना चाहिए आपको। नाउ जस्ट सी देयर इज ए प्रॉब्लम बट आई विल एक्सप्लेन। केस 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटर फॉर नोन 4 साइड एंड 1 डायगोनल। 4 साइड 1 डायगोनल नोन है, इसके लिए आई विल सजेस्ट दैट यू ड्रा ए रफ स्केच, एंड व्हेन यू ड्रा ए रफ स्केच सो कंस्ट्रक्शन बिकम्स वेरी सिंपल। स्टेप रिटर्न बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपने ABCD आपने क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया हुआ है। अब 4 साइड में यहाँ पर लिख दिया हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा जो कैसे करना है। सो इन दिस केस डायगोनल इज गिवन, सो फर्स्ट यू ड्रा ए डायगोनल AC। यहाँ पर C होगा, AC आप ड्रा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए AC डायगोनल क्या, उसके ऊपर D है और उसके नीचे B है। तो टू हैव ए D पॉइंट यू टेक ए कंपास हियर एंड ड्रा ए आर्क इक्वल टू 4.9। ये देखिए आपका ये आर्क जो है 4.9 सेंटीमीटर का आर्क है, ये आर्क। और AD जो है आपका 5.4 सेंटीमीटर का है, तो 5.4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर D पॉइंट कट जाएगा। आर्क ऐसे घुमा दीजिए और फिर एक ऐसे घुमाए तो D कट जाएगा, इन दोनों को मिला दीजिए। सेम थिंग डू फॉर द B पॉइंट। अब देखिए AB 3.8 है, तो 3.8 का यहाँ पर आर्क कर दीजिए और यहाँ पर 5.6 का आर्क कर दीजिए यहाँ से C से। तो क्या होगा कि आपका 1 पॉइंट ये मिल जाएगा। तो क्या हो गया आपका जो है कंस्ट्रक्शन आपका जो है क्वाड्रिलेटर हो गया, जिसके 4 साइड्स नोन है डायगोनल। बट रिमेंबर डायगोनल शुड बी हॉरिजॉन्टल, एंड ऑब्वियसली जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो D होगा, टॉप पर B होगा। तो आप आर्क काटना सब लड़के जानते हैं, वो बड़े आराम से कर सकते हैं जो है। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर विद, अब देखिए दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ड्रा रफ स्केच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 90 डिग्री एज शोन इन फिगर। इतना। अब रफ ड्रा यहाँ, अब स्क्वायर किया है, स्क्वायर आप में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो 4 चीज वही पता चल गया। एंगल 90 डिग्री होता है वो पता चल गया। अब यहाँ पर ये कर ले, तो अब यहाँ पर क्या करिए कि AB के बराबर यहाँ खींच लीजिए, ठीक है। अब AD के बराबर इधर आप 90 डिग्री करना है, कंस्ट्रक्शन से 90, 2 जून 9 कंस्ट्रक्शन 90, एक AB से छोटा लीजिए रेडियस और आर्क पूरा घुमा दीजिए, फिर एक कट यहाँ एक कट यहाँ, फिर तो ये आपका 90 डिग्री आपका आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ B हो जाएगा, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर इस पर हो गया, ये देखिए यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, दोनों को चारों को मिला स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन। वेरी सिंपल। अगर आप ये नहीं भी जानते हैं तो बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं, जो मैंने बताया है आपको जो है, और हिंदी में बताया है, इंग्लिश में भी। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ
ए रेक्टेंगल विद डायगोनल 7 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन टू डायगोनल इज 45। ध्यान से है। तो अब यहाँ पर जो है आपका जो है हमने जो है एक रफ स्केच बना लिया ABCD का। ऐसा फिगर इतना क्या क्या है, डायगोनल देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल बिटवीन टू डायगोनल मतलब 45, ये 45 बन दिया। अब इसको कैसे ड्रा किया जाए स्टेप वाइज लिखा हूं, लेकिन ध्यान रख लीजिए कि एज मैं मेंशन कि पहले आप डायगोनल को यहां पर खींच लीजिए। डायगोनल खींच लिया और डायगोनल को खींचेंगे तो 45 एंगल कैसे बनता है आपको अच्छी तरह पता है कि पहले 90 डिग्री बनाइए और 90 डिग्री को बाइसेक्ट करके 45 कर लीजिए तो आपका डी एंगल आ जाएगा। बात समझना। अब देखिए अब यहाँ पर जो है ये देखिए ड्रा ए हॉरिजॉन्टल AC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ बाय मेजरिंग स्केल। ड्रा ए बाइसेक्टर AC, इसका बाइसेक्टर जो है कंपास एज EF, इसका बाइसेक्टर निकालिए तो O निकल गया विद कट एंड ऐसे सब दिया हुआ है। फिर बाइसेक्ट EOC, EOC को बाइसेक्ट करके तो 45 पर ये जाएगा तो इसको सीधे खींच दीजिए। फिर फ्रॉम कट O कट GH, कट OD इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OB, यहाँ पे कट कर लीजिए, इसके बराबर कट कर लीजिए। और फिर AB BC D आर रेक्टेंगल देन टू डायगोनल्स AC एंड BC, एक डायगोनल ये हो जाएगा, एक डायगोनल ये हो जाएगा। तो ये आपका जो है एक क्वेश्चन है कि हमने कहा था कि 4 चीज पता होना चाहिए और 5 चीज पता होना चाहिए। डायगोनल पता चल गया और ये एक एंगल पता चल गया। रोम्बस करना है, इसमें भी वही है। रफ डायग्राम बना लीजिए, डायगोनल इसके बराबर खींच लीजिए और CD के बराबर इधर आर्क, AD के बराबर इधर आर्क। बड़े सिंपल है। अब हमें तो सिंपल लग रहा है लेकिन बच्चे लोग जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो और क्लियर समझ में आना चाहिए जो। अब देखिए अब थोड़ा ये उल्टा दिया लेकिन रफ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। रफ डायग्राम नहीं बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अब देखिए अब ये ABCD बना दिया गया 120 है। अब देखिए BC का बराबर जब मेजरिंग स्केल करिए फिर अब 120 जो डिग्री आपको बनाना जानना चाहिए कंपास से जो है क्या है ये रेडियस इससे कम का ऐसे आएगा, फिर एक कट दो कट, ठीक है। जैसे एक कट ये हो गया, एक कट ये हो गया। जब ध्यान सुनिएगा जो है कि हमने क्या किया कि एक हमने आपने ऐसे ड्रा किया है, एक लाइन ड्रा किया है और यहाँ से एक कट दो कट तो पॉइंट मिल जाएगा, इसको मिला देंगे तो 120 मिल जाएगा। तो AB हो जाएगा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यहाँ कट कर दीजिए और यहाँ पर 90 बना दीजिए क्योंकि अब देखिए 90 दिया हुआ है और 5.2 करके इसको मिला दीजिए, सिंपल। लेकिन व्हाट आई हैव सेड अर्लियर कि एंगल जो आपका जो है 90 डिग्री यू मस्ट नो, 45 you must know, 120 you must know, 135 you must know. All these things should be known. अब देखिए कैसे अब कंस्ट्रक्शन अब देखिए अब यहाँ पर 3 साइड्स दिया हुआ है, ठीक है, और 2 डायगोनल दिया हुआ है। AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। कैसे किया गया देखिए। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या BC के बराबर ये हमने कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। D जो है ये हमने निकाल लिया और डायगोनल के बराबर यहाँ काट। आप देखो यहाँ पर मैं मिलाया नहीं हूँ, ये हमारी गलती है, इसको मिला दीजिए आप। जो है हम भी बनाते बनाते थक जाते हैं तो कभी भूल जाते हैं, तो इसलिए उसको जो है अब इसके बाद मैं हिंदी में शुरू करूँगा, लेकिन मतलब जो है इंग्लिश में पहले फिनिश कर लेता हूँ तब, जिस लोगों का कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है। अब देखिए अब ये भी देखिए, इसमें देखिए ABCD दिया हुआ है, 2 एंगल दिया हुआ है और 2 साइड्स दिया हुआ है। देखिए 3 एंगल दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है, B 105 दिया हुआ है और C 120 दिया हुआ है। देखिए ये C 120 दिया हुआ है। देखिए आपका एग्जैक्टली हो चाहे ना हो, आप यहां पर लिखिए जरूर। तो क्या हो गया अब आपके देखिए 1 2 3 4 5, 10 में से 5 पता होना चाहिए। और ये स्टेप दिया हुआ है, थोड़ा इसको बड़ा आपको मतलब पेपर लेना पड़ेगा क्योंकि हमको भी समस्या यहाँ पर आया था। अब क्या किया गया, ड्राई रफ स्केच हमने कर दिया, ड्राई हॉरिजॉन्टल लाइन AB हमने खींच दिया,
4 सेंटीमीटर के ऊपर बाई स्केल से। डायल एंगल 60, अब 60 हमने यहाँ पर खींच दिया, पूरा लाइन खींच दीजिए, पूरा जहाँ तक जाता है वहाँ पर खींच दीजिए, तो 60 हो गया। फर्स्ट डायल एंगल 90 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम बी, अब बी से जो 90 डिग्री खींचिए यहाँ पर, बी से जो 90 डिग्री, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इधर से करना, इधर से नहीं, इधर से जो है। अब देखिए नाउ एम बी ओ, एम कहाँ है, हाँ यहाँ देखिए एम बी ओ 90 डिग्री हो गया। कट एट एन एन पी, एन और पी पर ऐसे करेंगे तो एन पर पहले कटेगा, यहाँ पर कटेगा एन पी, ज्वाइन पी, इसको यहाँ करेंगे। अब 90 में अगर ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूं, ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। 105 देखिएगा, 105 इज इक्वल टू 90 डिग्री में क्या जोड़ेंगे तो 105 होगा, 15, ठीक है। अगर आप 15 जोड़ेंगे तो आपका जो है 105 हो जाएगा। ये आपको मैं छोड़ा था बताने के लिए। अब देखिए तो 90 तो ये हो गया, ठीक है, 90 ये हो गया। अब देखिए ये 60 होता है, ये 120 होता है, लेकिन ये 60 हुआ तो इसको करेंगे तो 30 हो गया, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो इस तरह से आपको जरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 105 देकर डोंट भाई 105 हाउ विल मेक इट, कन्वर्ट ऑल एंगल, जो मैं यहाँ पर बताया हूँ सब पहले देखिए, मैं उसके लिए अभी जो मैंने कहा था कि पता होना चाहिए आप लोगों को। ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक एंगल आपको पता होना चाहिए। जैसे 105 है और 135 कैसे होगा? अब देखिए मैं इसमें पहले एक्चुअली क्या होता है कि 120 ही बनाते हैं, मैं बना के दिखा रहा हूं प्लस एड करके जो है। देखिए अब आप देखिए यहां पर ये लाइन खींचते हैं, कोई लाइन खींचिए, एंगल क्या बना, आई एम टेलिंग यू एंगल बनाना, और इसको सेंटर लीजिए, ए को, बी को सेंटर मत लीजिए, लेकिन जो कंपास का जो है रेडियस है वो ए बी से स्मॉल होना चाहिए, और उसी स्मॉल को लेकर के आप ऐसे खींच दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर क्या करिए, डोंट चेंज द रेडियस, और यहां से लेके इसको आर्क काटिए। अगर इसको मिला देंगे तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। और फिर एक आर्क और काट दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा तो ये 120 हो जाएगा, समझ गए। और 60, 60, 180, इस 60 को डिवाइड कर दीजिएगा 2 भाग में तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 60 प्लस 30, ये 30 है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब 135 कैसे करेंगे? देखिए 135 इज इक्वल टू 120 प्लस 15, तो 120 तो बाबा मैं किया ही हूं, ये 120 तो है ही है। अब क्या है, 60, 60, 120, 120, 60, 80, ये 80 वाला लाइन हो गया, 180 का हो गया। तो ये 60 है, तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो 120 प्लस 15 इज इक्वल टू 135। तो हमने क्या कहा कि एंगल का बाइसेक्टर शुड बी नोन, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर कंपास से, और बाय यूजिंग द कंपास फर्स्ट 60, देन 120, देन 90, देन 45, 90 का 45, 60 का 30 और 30 का हाफ 15। ये सब एंगल आपको बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके बाबू जो है आप कंस्ट्रक्शन जो है ये क्वाड्रिलेटरल का जो कैटेगरी मैंने बनाया है बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्वाड्रिलेटरल में 5 थिंग्स होता है, 10 थिंग्स होता है, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 2 बाइसेक्टर। आउट ऑफ 10 5 शुड बी नोन। अब कहीं राइट एंगल कहा है उसका मतलब 90 समझना पड़ेगा जो है। थैंक यू वेरी मच।